हारे हो जी प्यारा जी, हारे हो जी प्यारा जी, सहारा विना बीज उगતું નથી. सहारा जगत कुसंगे जदू, केवल सत्संगे जसु. દાદાજીનું હસતું મોં, શમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયા ભરમાં લુખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, આત્મ રમણા વિના ક્યાંય ગૃચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી પ્યારાજી, હીરા મોતી મારાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। दर्शनान खुशाल, ये पद सम हमने रखे हैं, पद हमने रखे हैं। ओके, अपना ग्रुप में तो अभी सीख जाओ, अभी सीख जाने का। ओके ओके वेरी गुड। ओके, अभी 3 मिनट है, तो 9 कलमों। चिनाई नंबर 1। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण अहम ना डूबे ना डुबाय के डूबा प्रत्ययना अनुदाय एवी परम शक्ति आपो। मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण अहम ना डूबे एवी चारवार वाणी, चारवार वर्तन अने चारवार मनन करवानी परम शक्ति आपो। नवनीत दीदी नंबर 2। જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ
પ્રમાણ ન દબાવાય કે દબાવવા પ્રત્યે ન અનુભવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દબાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, Vijayji number 3. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Taxiba number 4. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Darshana number 5. Kushal number 5. हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति भाषा न बोली जाए, न बोलाई जाए एवं किसी कर्ता को ऐसी धर्म शक्ति आप दे। यदि कोई कठोर या तंत्र भाषा उससे करे तो उसकी प्रति भाषा बोलने की आप मुझे धर्म शक्ति दे. Didi number 6. Didi. હા, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Didi. હે દાદા ભગવાન, Priya. નથી સંભળાતું. ઓકે, નવની દીદી તારું નથી આવતું. નવની દીદી. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમૃદ્ધ ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Arush number 8. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ વગર પરોક્ષ જીવંત વગર મૃત્યુ મેળાનો કોઈ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અવિનય ન કરાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. Okay, Navya. હે દાદા ભગવાન, મને દોકટ કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. सच्चिदानंद हीरानंद जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. के इतने में तो बुलाए बाढ़ को फॉलो करेंगे. नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव सागुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपा वपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बेसवानी
સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સમજવાની અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. હું ભાવ કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, મન, વચન, કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધાત્મા 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 છું. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके श्रेया दीदी. ओह नहीं, नो साउंड नहीं आता है. ओके चिनाई. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर मुझे मेरे दिल को और सच्ची हमेशा सहारा बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे. ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया योग और अपने आत्मा का जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें. साक्षीबा. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे सही ढंग से हो. ऐसी परम शक्ति आप हमें देते सच्चिदानंद. दिव्या. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे. दिल के है सच्चे, है सच्चे, फिर भी है कच्चे. है कच्चे. हम खुलेंगे अच्छे अच्छे. करेंगे अच्छे अच्छे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके हिंदी वाला कौन है? नवनीत दीदी. दादा भगवान सेपरेशन. ओह वेट, दक्ष है. दक्ष, दादा भगवान सेपरेशन प्रेयर आता है? अनम्यूट करो. ओके नवनीत दीदी. हे सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग है, नवनीति अलग है. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल है, नवनीति रिलेटिव है. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, नवनीति टेम्पररी है. ओके अहमदाबाद. खुशी. जय सच्चिदानंद. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, વિધિ જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, વિધિ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, વિધિ ટેમ્પરરી છે.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज आपका हैप्पी 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 था कि नहीं, जरा बताइए। गुरु के साथ कैसा रहा? साउंड नहीं आवतो। ओके, ओ सुनील दीदी बोलो। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सबकी बात मानी और आर्गुमेंट भी किया। नहीं सुनाई दिया, आप ब्रेकअप होते हैं। ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुई थी क्योंकि करिश्मा ने आज पद नहीं सीखा इसलिए। तो मम्मी ने कहा उसे छोड़ दो, वो अगर नहीं सीखना चाहती। तो उस समय एक बार हो गया था। और सुबह में मैं जब स्कूल जा रही थी तब मम्मी ने दूध ला के दिया कि पीते जाओ, हर रोज दूध वेस्ट जाता है। तो जब उन्होंने दूध ला कर दिया तो मुझे थोड़ा अभाव हो गया कि मेरा स्कूल टाइम हो रहा है इसलिए उन्होंने। और मम्मी जब मैं स्कूल से वापस आई तो कोई खाना रेडी नहीं था कि मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि खाना क्यों रेडी नहीं किया। मुझे अभाव भी हो गया। बाद में मम्मी ने कुछ बना के दिया भी। पापा के साथ आज कुछ नहीं हुआ आज। करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी को और गुरु खुशी दीदी को, नहीं गुरु मोनिका दीदी को और गुरु खुशी दीदी को आज मैंने नो बोला था। और गुरु पापा को और गुरु मम्मी को मैंने आज यस बोला था। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी और गुरु पापा को किसी को भी आज मैंने ना नहीं कहा और आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ आज। Okay, star for you. हिरकसिबा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी और गुरु पापा दोनों को कभी ना नहीं बोला, आर्गुमेंट भी नहीं हुई है। क्या बात है। के पुणे। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के साथ आर्गुमेंट नहीं की थी और उनको ना नहीं कहा था, और मैंने पापा को भी ना नहीं कहा तो उनसे आर्गुमेंट नहीं की और दीदी से भी नहीं। दर्शना। जय सच्चिदानंद। आज मेरे गुरु पापा के साथ आर्गुमेंट नहीं हुआ था, मैंने उनको ना नहीं कहा था। और मेरे आज गुरु मम्मी के साथ थोड़ा अभाव हो गया था और उनको मैंने ना नहीं कहा था। और गुरु छोटे भाई के साथ भी मेरा आर्गुमेंट नहीं हुआ और मैंने उसको ना नहीं कहा था। अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। मुझे सुबह खिचड़ी खानी थी और मम्मी ने बोला ये त्योहार के दिन है तो खिचड़ी नहीं बन सकती, तो मुझे थोड़ा अभाव आ गया था। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के साथ आर्गुमेंट नहीं हुई थी और मैंने नो भी नहीं बोला था। प्रिया दीदी वॉइस आया? सुनाई दे रहा है? आज सुनाई देता है। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी के साथ एक बार आर्ग्यूमेंट कर ली थी। मम्मी ने मुझको I'll call you back, okay? दूध दिया था सुबह को, पर मम्मी ने एक बार मुझको बोला कि पी ले, पर मैंने नहीं पिया, इसलिए मैंने आर्ग्यूमेंट हो गई। आरुष। जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी को आर्गुमेंट भी नहीं की, ना भी नहीं बोला। Okay, star for you. स्टार अपना नोट में लिखो। लक्ष्य। हाँ, वो आज जय सच्चिदानंद। वो हाँ, आज मेरे गुरु मम्मी के साथ एक बार आर्गुमेंट हो गई थी। क्या हुआ था? लक्ष्य।
मैं मम्मी को बोल रहा था मम्मा वो अपन कब जाएंगे तो मम्मी ने चिल्ला दिया था। जय दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी या पापा किसी को भी ना नहीं बोला। और छोटे गुरु को? नहीं। ओके, स्टार फॉर यू। ओके दीपक दादा, 3 stars टुडे। गुड। अभी भी मम्मी से वो होता है, हम समझ सकते हैं कि आपकी उम्र बीच में आती है, अनुभव बहुत बाकी है, तो ये आप थोड़ी जल्दबाजी में इम्पल्सिवली आपका नो हो जाता है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पुलिनानंद जी ने क्या कहा था, एक बार हाँ कह दो। याद है मोनिका, विधि? हाँ वो पुलिनानंद जी की क्लिप सुनी थी? हाँ वो सुनने के लिए थी, समझने के लिए भी। न्यूज ब्रॉडकास्ट था। वो न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है ना, सुन के भूल जाने का होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था वो समझना जरूरी है। एक बार मन ना करे फिर भी हाँ कह दो। लेकिन वो तो अगर आपने तय किया है, और वो तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए ही कहा है कि 1 हफ्ते के लिए हाँ करके देखो, और आपको उसका क्या परिणाम आता है उसको ऑब्जर्व करो। क्योंकि अगर मम्मी कुछ करते हैं, कहते हैं, तो उसके पीछे कितने सारे कारण होते हैं, और वो कारण समझ में आना मुश्किल होता है। लेकिन वो एकदम जल्दबाजी से ना कह लेना, तो उसको पूछना है कि क्यों नहीं कर सकते। वो बोले कि ये त्योहार है तो बराबर है, तो त्योहार में तो खिचड़ी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। खिचड़ी की और उसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो ना। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम तो मम्मी को क्यों प्रॉब्लम लगता है, वो सोचो ना। वो दूसरे की मांडी को भी पूछ के देखो, मम्मी अगर गलत है ऐसा लगता है तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये सारा व्यवहार है ना, मान्यता से चलता है, और वो मान्यता को यानी लौकिक मान्यता से, तो लौकिक मान्यता को हमें स्वीकार रखना है। क्योंकि कल कहीं गए और वहां तो सभी जगह लोग लौकिक मान्यता को स्वीकार करते हैं, और ऐसा ही होगा तो आपको हर बार किसी न किसी प्रकार का संघर्ष होता ही रहेगा सभी के साथ। हाँ। उसमें क्या हो गया, समझ में आया ना। तो लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो क्लिप पुलिनानंद जी की वापस सुनो। उन्होंने क्या कहा, एक बार आप हाँ ही कह दो, बस 1 वीक के लिए, फिर देखो आपको क्या होता है, उसका परिणाम क्या आता है वो देखो, फिर मजा आएगा। और जो जहां नाना कहा वहां प्रतिक्रमण किया था, नहीं किया था। ओ बाप रे। सुबह ब्रेन योगा किया था, नहीं किया था। अगर क्या करेंगे, मेरे तो दिल पर दिन भर दिन वजन बढ़ता जाता है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। आपको वजन बढ़ता नहीं होगा, लेकिन मेरा तो दिल भारी होता जाता है। हाँ, जय सच्चिदानंद। Okay, अभी everybody must say yes, 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 yes. Okay, ऐसा ए भी करो। और आज परेश दादा ने क्या बोला था, आज जिसने मम्मी के साथ प्रॉब्लम किया है ना, वो सब डब्बा में चला गया। डब्बा यानी किसको मालूम है क्या बोला था परेश दादा ने? खुशी, मोनिका बोलो। चिन्नई, खुशी
परीक्षा ने डब्बा यानी कि हमें कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हमने ना बोल दिया तो उसके क्या फ्यूचर में क्या आपने डब्बा बोला तो फ्यूचर में क्या किया आपने फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में हमें मम्मी पापा के आशीर्वाद नहीं मिलेगी और हम सक्सेस हो नहीं पाएंगे। हाँ वही देखने का। सो ये चीज दो बहुत याद करने का। और हमने मालूम है एक अब सब लोगों ने एक मूवी देखा था यस का। किसको मालूम है? लक्ष्य आपको नहीं मालूम है, आप नहीं था तब। ठीक थी बा चेन्नई अहमदाबाद कुछ हम एक आदमी था साउथ अफ्रीका में। हैमिल्टन। क्या नाम? हैमिल्टन। मिस्टर हैमिल्टन। और डब्बा था और क्या बन गया? प्रोफेसर साइंटिस्ट। विदाउट स्टडिंग ही बिकम ए डॉक्टर। कैसे बना डॉक्टर? यस। मिस्टर यस। ओके ये अभी सोचो। अपने रजनी दादा हाँ, मुझे एक विचार आया कि इन लोगों को ऑब्जर्व करने दो डैडी और मम्मी दिन में कितना काम करते हैं एंड नोट इट डाउन। जब तक आप घर में हैं एटलीस्ट उतना तो देखो, घर के बाहर होते तो अनुमान से लिखना पड़ेगा कि खाना बनाया, ये किया, वो किया, तो पता चलेगा कि डैडी मम्मी कितना काम करते हैं और किसके लिए करते हैं। जस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है ये यस के साथ ये ऑब्जर्व करो और आप क्या करते हैं डैडी मम्मी को वो सोचने के बाद में। ओके तो अभी विधि दीदी हमने तो एक्सपेरिमेंट किया था ना खाने हाँ, के बारे में। गूगल पे किसको जो याद खाना है? है किसको याद है क्या? विधि दीदी क्या एक्सपेरिमेंट किया था? टेबल पे जो भी खाना है वो खा लेने का, नो फरमाइश, कुछ भी नहीं, कुछ कहने का भी नहीं, जो भी आए वो खा लेने का। नहीं वो नहीं एक्सपेरिमेंट बोला था। ये बच्चे हाँ लोग वो खुश। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी था कि हमें अंदर से भाव करने का कि ये खाना और देखने का कि कितनी देर में वो खाना खाता है। एग्जैक्टली ओके तो हम लोग सब भूल जाते हैं ये दादा का साइंस सब भूल जाते हैं तो क्या होगा? सब डब्बा पथरा और डब्बा। ओके प्लीज ये सब छोटी छोटी बातें याद रखने की और एक्सपेरिमेंट करने का। ओके हिरन दादा हिरन काका आपने सब सुना। ये क्या करेगा अभी उन लोग को? उन लोग को कुछ बोलो। दीपक का दादा तो अभी मोटे होते जाता रहा है। मेरा हार्ट बड़ा होते जाता है अभी। ये जो बच्चों का सुना तो हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। तो ये जो सब अभी अपने को ये सब वातावरण मिलता है, आपता पुत्रों से इतनी अच्छी समझ मिलती है और ये उम्र में इतनी अच्छी समझ मिलती है तो अपना काम निकल जाएगा। अगर ये जो अपने को इस तरह से सत्संग मिलता है, ऐसी समझ मिलती है, तो अगर ये समझ से हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा ये जो आपको आगे जाके जितना भी आगे बढ़ना है वो आप बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बात है मम्मी पापा की बात मानने की जो बात है, तो सबसे पहले ये समझने का है कि मुझे उनकी बात क्यों मानने का है, कि मुझे उनकी बात क्यों मानने का है कि अपनों ने पूरा जो
व्यवहार है, वो व्यवहार में अपने को कुछ भी पता नहीं है। अपने को क्या लगता है कि मुझे ये अच्छा लगता है तो ये मैं करूंगा। सबको ऐसा लगता है ना। और हाँ। जो अच्छा नहीं लगता है वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो अच्छा लगता है वो आपके कितने हित में है वो आपको पता है? नहीं। समझ में आया? जो भी अपने को अच्छा लगता है, ये मोबाइल देखने का अच्छा लगता है, टीवी देखने का अच्छा लगता है, घूमने का अच्छा लगता है, बाहर खाना खाने का अच्छा लगता है। समझ में आया? बहुत सारी चीज है कि वो अपने को अच्छी लगती है, लेकिन उससे कितना नुकसान है वो अपने को पता नहीं है। वो किसको पता है? कि मम्मी पापा को पता है कि ये जो इसका व्यवहार है खाने पीने की बाबत में, घूमने की बाबत में, जो भी सब जो भी बात है उसमें, वहां पे वो लोग आपको टकोर क्यों करेंगे? आप आपकी आपको आपके लिए पूरा दिन काम करते हैं। देखो अभी जो दीपक दादा ने बताया कि एक बार देखो तो सही कि पापा कितना काम करते हैं, एक बार देखो तो सही मम्मी कितना काम करते हैं। तो किसके लिए ये सब करते हैं? हमारे लिए। तो आपके लिए इतना करने के बाद कोई भी माँ बाप है इतना काम करते हैं तो आपको कभी दुख हो ऐसा व्यवहार करेंगे? नहीं। फिर भी आपको दुख होता है ना। तो उसकी वजह क्या है? तो कि उसकी वजह क्या है कि अपने को जो व्यवहार करना है वो अपने को अच्छा लगता है लेकिन अपने हित में नहीं है। मम्मी पापा मना कब करेंगे कि आपके हित में नहीं है, वो व्यवहार करने से आपका ही अहित होगा, आपको नुकसान होगा, वो आपको पता नहीं है और उनको पता है। उसके लिए आपको ये समझाते हैं कि आप ऐसा करो। तो अपने को कोई बार अपने को ऐसा लगे कि ये मेरे को क्यों नाम मना करते हैं, तो पूछ लेने का कि मम्मी आप मेरे को क्यों ऐसा मना करते हैं, तो आपको सही बात बताएंगे। समझ में आया? तो आपको सही बात बताएंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये बात सही है तो मुझे यही करने का है। कभी ना मोहित समझ में भाई, आया हिरेन दादा, हिरेन काका, तो वो देखो विधि दीदी ने ना बोला, मम्मी ने, कि आज नहीं हो सकता है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो तो एक्सेप्ट करना मांगता है ना। जैसे आपने बताया कि मम्मी तो आपके हित के लिए कर, देखो हाँ हाँ, वो कोई भी चीज व्यवहार है। एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम है ना। ये एक ऐसा है रजनीकांत दादा के अपने ये बच्चे बात करते हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं ये जो माँ बाप है और जो वो उनको समझाना चाहते हैं तो ये अभी भी बात करते हैं ना, तो अभी कहीं ना कहीं अधूरी बात है। वो जो माँ बाप को मम्मी पापा को पूछेंगे तो मम्मी पापा बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे उनको कि तेरे लिए ये सही नहीं है और ये सही है। या तो जो भी सर्कमस्टांसिस है वो बताएंगे ऐसा ऐसा है, इसके लिए ऐसा ऐसा करने का है। तो हाँ, अपने को विधि दीदी की बात हो, विधि दीदी आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? बताओ। क्योंकि मुझे वही खाना था और मम्मी ने मना बोल दिया। वो तो इसलिए रीजन तो ना ना ना, मम्मी ने ये रीजन दिया मतलब था। ऐसा मतलब मैंने मम्मी को बोला दादा माँ आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि त्योहार के दिन ये बनी नहीं बनता, नहीं ये बनता है। इसलिए मेरी वाणी थोड़ी कठोर हो गई और मतलब थोड़ा दूसरों के प्रति अभाव भी हो गया। लोग करे वो थोड़ी हमें करना जरूरी है। आप गुरु बन गया और आपको गुरु मम्मी को सिखाने लगे। हाँ वैसा ही किया आज मैंने। तो तो विधि अपने ये जो मम्मी ने बताया ना, तो ये क्या बताया आपको कि आपको समाज में रहने का है। हाँ। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको रहने का है उसके तौर तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। तो वो उसके तौर तरीके आप उसके स्वीकार नहीं करोगे तो आगे जाके क्या होगा? आप समझो कहीं पे भी शादी करके गए तो अच्छी तरह से रह पाएंगे? समाज के तौर तरीके है उसका पालन नहीं करेंगे तो कैसा होगा? राइट। तो अभी ये जो मम्मी आपको बताते हैं तो जो जहाँ पे आपको रहने का है वो जो समाज है उसके सब तौर तरीके है, उसको आप स्वीकार करोगे तो आप जहाँ पे भी जाओगे तो अच्छी तरह से रह पाओगे। हाँ। सिर्फ ये जो उन्होंने देखा कि ये सब
ऐसा नहीं होता है, खिचड़ी नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, समझ में आया? अपने को ऐसा लगता है, लेकिन कैसा है कि पूरा जो जीवन है ने, हाँ पूरा अपना जीवन वो सब मान्यता के हिसाब से ही चलता है। हाँ समझ में आया? हाँ तो ये जो मान्यता के हिसाब से चलते हैं, और अपने को दादा भगवान ने जो सही समझ दी है, तो अपने को जो बाहर का व्यवहार है, तो वो बाहर का व्यवहार किस तरह से करने का है, जो समझे है उस तरह से करने का है कि मान्यता के हिसाब से चलने का है? मतलब वैसे तो जो समझे है उस हिसाब से चलना है। नहीं, आपको जो भी व्यवहार करने का है वो मान्यता के हिसाब से करने का है। कैसे? तो क्या आपको किसी ने पूछा कि आप कौन है, तो क्या कहेंगे? मैं विधि हूँ। तो ये मान्यता हुई कि नहीं? हाँ ये मान्यता के हिसाब से व्यवहार हुआ कि नहीं? हाँ मान्यता से तो हुआ। बाहर तो पूरा जो व्यवहार है, समाज का जो भी व्यवहार है, वो मान्यता के हिसाब से है। राइट आपने कोई भी मान्यता है उसका स्वीकार नहीं किया तो आपको समाज में रहने नहीं देंगे। राइट। आपको समाज में रहने का है, हम्म। और वहां के जो मान्यता है, तौर तरीके है, उसको सबको स्वीकार करने का है। समझने की बात अलग है और करने की बात अलग है। करने का कैसा है कि लोक व्यवहार के हिसाब से करने का है, बराबर। और समझने का क्या है तो कि दादा भगवान के विज्ञान से समझने का है। राइट। मालूम पड़ गया है हाँ बच्चे लोग? है तो ये तो अभी शॉर्ट करेंगे। ये 3 मैसेज आज है। ओके, तो जरा ध्यान रखना। पुलिस आनंद जी का मैसेज, अपने परेशान परेशान जी का, और अभी क्या बताया कि दादा का ज्ञान समझने का है और कैसे समझ से काम करने का है। ओके, आप किधर भी जाएगा तो ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसे नहीं कर सकता, दादा ने ना बोला है। स्कूल में और ऑफिस में, कॉलेज में जाएगा ऐसे नहीं बोल सकता। ओके, तो ये 3 शब्द, और ऑब्जर्व योर पेरेंट्स। ओके, वी विल कीप इट शॉर्ट। तो बच्चे लोग जो हाईलाइट हो ना, ये सिर्फ पॉइंट आप नोट्स में लिखो। ओके, यही पॉइंट लिखने का है, जो हाईलाइट होता है वही अपने नोट्स में लिखने का है। तो कल उठ के ये देखने का, ओके कल का सत्संग में ये 3 हाईलाइट थी, वो ध्यान रखने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। ओके, हाँ। सबने ये 3 लिखो और कल बताना क्या होता है। ओके हम्म। दीपकांत जी, अभी से हम वही करेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स करेगा, और ओके सबको उन लोग को तो दे कैन रिफ्रेश जस्ट लाइक स्कूल से आके नोट्स लिखते हैं ऐसा। हाँ ठीक है। ओके, और विधि जी ये 3 पॉइंट्स पोस्ट कर देने का। ओके हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी पद सुनेंगे। ओ, रिकॉर्ड ही नहीं किया, चलो। ओके, मोनिका दीदी का पद है आज। दीपकांत जी ओके, जय सच्चिदानंद। या हाँ, जय सच्चिदानंद। वाणी न संयुक्त परनी परादे, शौरी समझती उपयोगी जागृति, सामो मारस तो पावे ते बोली, तेनु छे जो कम जो भी प्रकृति, अपने थी कड़वू बोले जाए, प्रतिगमन थी युवावे पलटी, जड़ शेरवानी छताई इफेक्टिव, खुद नीवानी जो काया भावे सती, बीजाने दुखारी कशाई वाणी, सुधारवा માટે સાચા ઉપાય, જ્ઞાની પાસેથી અજ્ઞાન
વનની વાણીનું મૌન જ હિતાય. જય સચિદાનંદ. कौन सी सीडी का है? वो एक सेकंड. उसका बिगिनिंग कैसा है? वो पद नंबर 779. हाँ, लेकिन उसको क्या है, बिगिनिंग क्या है? व्हाट इज द बिगिनिंग लाइन? मुखड़ा वाणी न संयोग परने पराधीन. ज्ञानी ना संयोग पर ने पराधीन। हाँ. ओके। Not able to locate. ठीक है, आपको क्या समझ में आया है वो बोलो। कैसे ये कैसे सिलेक्ट किया? पापा ने कहा इसलिए. तो पापा से कहा तो पापा से समझ तो लेना चाहिए। आप ऐसे ही बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? पापा यही पर क्या? हाँ, पापा यही पर हमसे पूछो. क्या है पापा? यही पर है. मुझे तो पापा को पास से समझ लेना भी तो चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, बट पापा कहते हैं सत्संग में जाके पूछो. हम्म। क्यों करते हैं? 78। દીપકાનંદજી, हाँ, અહીંયા લાઈટ ગઈ છે, 1-2 મિનિટમાં આવું. ओके, फाइन। ના, અહીંયા ગઈ. ये था क्या? हाँ. लाइट आई गई।
हिरेनानंद जी हाँ जी आइए। ELC भी पढ़ी गई थी। आज ओके। ओके बोलो। ये पद पड़ा है। हाँ, વાણીના સંયોગ પરને પરાધીન, સવળી સમજણથી उपयोगे जागृति। तो कि ये जो वाणी के संयोग है वो संयोग कैसे है कि वाणी खुद की नहीं है और पराधीन मतलब अपने खुद की नहीं है और खुद के अधीन नहीं है। सवड़ी समझण थी उपयोगे जागृति, तो कि अगर सही समझ हो गई तो अपना जो उपयोग है और जागृति है वो ये रहती है कि वाणी का जो संयोग है ये कब रखने का है, तो कि जब ये जो कोई भी अपने को कुछ बोलता है तो अपने को क्या लगता है कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा कहा तो अब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। तो कि वहां पे समझने का है कि ये जो वाणी है, कोई भी अपने को किसी कुछ भी बोलता है तो वो उसके अधीन नहीं है। और अभी दीपक आनंद जी एक बात परेश आनंद जी से हुई थी, आपको शायद याद होगा, वो गीता बहन ने क्वेश्चन किया था कि कोई मुझे कुछ बोलता है तो मेरे लिए कुछ बोलता है तो उसकी असर बहुत होती है। तो जो सत्संग पूरा होने के बाद थोड़ी देर के बाद परेश आनंद जी का फोन आया था, तो मैंने उनको बताया कि मैंने गीता बहन को ये जवाब दिया, ऐसा बताया परेश आनंद जी को। तो परेश आनंद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। परेश आनंद जी ने बोला कि उनको कहने का था कि ये जो कोई भी बोलता है तो संडास कैसे लगती है वैसे उसको संडास लगी है। वो संडास कोई रोक पाता है तो इस तरह से कोई कुछ भी रोक नहीं पाता है। कोई भी अपने को कुछ भी बोलता है तो जैसे संडास लगती है और रोक नहीं पाते वैसा है ये। तो ये जो वाणी का संयोग है, कोई अपने को बोलता है तो अपने को लगता है कि इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहा, लेकिन कोई भी कुछ भी रोक नहीं पाता है। उसको जो भी अंदर है वो निकलता है तो वो भी उसको काबू नहीं कर सकता है, ऐसा है। ये पूरे पद के बात करने की है दीपक आनंद जी? नहीं, थोड़ा ही ब्रीफली। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आया। और दूसरी दो लाइन का बता दो बस। सामो मानस तो फावे ते बोले, एनु छे जोखम जो भी प्रकृति। ये बहुत बड़ी बात बताई। तो कि सामने वाला है उसको कुछ भी बोलने का अधिकार है। तो कि क्यों अधिकार है? तो कि कुछ भी बोलता है सामने वाले का तो सामने वाला दो तरीके से बोल सकता है। या तो वो पागल है और अपने को कुछ बोलता है, या तो पागल नहीं है लेकिन अपने उन्हें कुछ किया है तो बोलता है। दो में से एक ही चीज होती है, या तो अपने उन्हें कुछ किया है और बोलता है, या तो वो पागल है। अभी अपन घर में देखे कि अपने माँ बाप है, भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, तो पागल नहीं है। कुछ भी है तो उसके हिसाब से बोलते हैं। तो उसमें वहां पे समझने का है, दो चीज समझने की है। तो कि ये जो बोलता है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है और गलती करी है तो वो उसको कुछ भी बोलने का अधिकार है। अपनी गलती ही उसको अधिकार देती है कुछ भी बोलने का। किसी को अधिकार ऐसे नहीं मिल जाता है, अपनी गलती के हिसाब से उसको अधिकार मिलता है। तो कि सामने वाला कुछ भी बोले तो अभी अपन जो सुन लेते हैं उसको सामने
जवाब नहीं देते तो अपना जोखिम खड़ा नहीं होता है। हाँ, जोखिमदारी उसकी रहती है, अपना जोखिम नहीं रहता है। तो वहां पे क्या करने का है, तो के सामने वाले की प्रकृति देखने की है। तो के सामने वाले की प्रकृति देख के उसको वहां पे समझने का है कि ये मैंने गलती करी और सामने ऐसी प्रकृति है तो ऐसा मेरे साथ किया। तो वहां पे उसकी प्रकृति को देख के और उसके अंदर जो भगवान है उसका दर्शन करके आगे निकल जाने का है। आपणाथी कड़वू बोले ही जाए, प्रतिक्रमण थी देव भाव पलटी। अगर उसकी प्रकृति और भगवान का दर्शन नहीं किया और अपने से कुछ उसके सामने अपन बोल गए तो उसके लिए भी दादा भगवान ने ये दवाई दी है। तो क्या दवाई दी है, तो उसने कुछ भी बोला और अपने से कुछ भी बोला गया और उसको सामने वाले को दुख हुआ तो वहां पे प्रतिक्रमण करके उसको धो डालो। ठीक है दीपक आनंद जी? या परफेक्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी से कोई भी आपको बोले वो पद गाने का तो आप खुद एक दो बार देख लो उसे क्या है। जस्ट ब्लंट होके आप गाएंगे तो उसका कोई मतलब होता है? मेरी तो समझ में नहीं आता है। ये दीपक आनंद जी आपने बहुत अच्छा ये बात करी है कि ये कोई भी अपन व्यवहार करते हैं, ये पद गाते हैं तो उसका जो अपने भाव से कब गा सकते हैं, तो उसमें क्या बात बताई है उसको जानेंगे तो अपने भाव आते हैं उसके प्रति। अरे मेरे बॉस ने मुझे समझ के बगैर काम करने को बताया था तो मैंने बोला आप कर लो, मैं नहीं करने वाला। तो उन्होंने गुस्से में आके बोला कंपनी छोड़ के चले जाओ। मैं बोला मैं क्यों चले जाऊं, मैं तो बुद्धू नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। जो काम करूंगा वो समझ के करूंगा वरना नहीं करूंगा। बराबर। ओके मनिका बेटे समझ में आया? हाँ, बोलो क्या समझ में आया? कि कोई भी जब हम व्यवहार में कुछ भी करते हैं तो हमें उसे समझ के करना चाहिए। अरे ये नहीं, ये पद के बारे में वो तो हो गया। हाँ, किरण आनंद जी ने ये समझाया कि जो भी हम करते हैं, अगर हम गलतियां करते हैं तो वो दूसरों जो भी हमारी गलती देखते हैं उनके पास वो अधिकार है कि वो बोल सकते हैं। और अगर हमने उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया और उनके अंदर दादा भगवान देखी और उनकी प्रकृति समझी तो वो हमें अभाव बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमने उनमें दादा भगवान नहीं देखा और उनकी अभाव ही किया तो उस समय हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। हमारे से जब कटु वचन बोला जाता है तब हाँ, प्रतिक्रमण। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चों।